Good morning. I am Anil Agarwal, former Chief Manager, Punjab National Bank. So now only 1 week is left when we have to appear for IBPS clerk pre-examination. Now most of you are having exam on 5th. Some of you are worried about Bandh or road transportation and so many other things, whether exam will happen on time or not. But right now we have to only think about our preparation. Because 5th is 1 week away, and how things will change during this week, we are not aware. So right now we have to think that exam is on scheduled date, we have to remain prepared, and we have to make alternate arrangements of transportation to reach the destination. Now what should be our strategy during this period? The strategy should be minimum use of mock test. That means during 1 week you will do at the most 3 or 4 mock tests. And this mock test will be done on alternate day basis. There is no need of overplaying the mock test during these days. Because mock test purpose is to identify our weak areas. So that you will continue to do in the last week also. I have already suggested you a very good mock test. Link is available in description box, comment box. Thousands of our subscribers are already improving their performance by using my strategies. And I am happy they compliment me continuously for suggesting a good mock test. If by chance you have not taken this mock test till now, still there is time to take this mock test and take advantage in final weeks. Subscribe the mock test, link is available in description as well as comment column. After that, attempting the mock test, spot your weak areas. Spotting the weak areas is the biggest challenge before every candidate. And that's why the mock test helps us in spotting it easily. Weak area means the area where we are unable to solve the questions, we are unable to understand the questions, or if at all we have solved it wrong. That means this is my weak area. And once I identify my weak area, now my energies must be directed towards focusing my study on these areas only. So one thing is, every candidate has some areas where he is strong or she is strong. Then there are some areas where he or she is weak. So in final days, you should focus on weak areas. Say your English is weak, focus on that. Say your quant is weak, focus on that. Your reasoning is weak, focus on that. So how you should do now, instead of giving equal time to each subject, now you should give 50% time to your weak area. And rest of 50% time should be distributed into 2 parts. Say your English is weak and you plan to study for 8 hours. 4 hours you should spend on English and 2 hours each on quant and reasoning. Say you are weak in quant. Spend 4 hours on quant, 2 hours on English, 2 hours on reasoning. Say you are weak in reasoning. Spend 4 hours on reasoning, spend 2 hours on English and 2 hours on quant. Say you are weak on 2 subjects out of 3. So in that situation, 1/4 of time you should give to the strong topic and 3/4 of your time should be dedicated to 2 weak areas. Say you want to give 6 hours, 8 hours per day. So out of 6 hours, 3 hours to 2 weak subjects each and 2 hours to strong subject. So this way, distribute your time, balance it out. Don't do lopsided study. Don't focus on one subject only. Focus on all the 3 subjects,
but the distribution of time should be tilted towards weak areas. So adopt this strategy, you will be successful. अब यही बातें हम हिंदी में करेंगे। हम आखिरी हफ्ते में पहुंच गए जब हमारा एग्जाम है। अधिकतर लोगों का 5 दिसंबर को क्लरिकल एग्जाम है, बाकी लोगों को 12 को है। दोनों के लिए अब सेम स्ट्रेटजी चलेगी क्योंकि हम फाइनल वीक्स में आ चुके हैं। आप दोनों कैंडिडेट्स को अब प्री पर ही फोकस करना है और मॉक्स को ओवरप्ले नहीं करना है। काफी लोग ये गलती करते हैं, मॉक ही मॉक कर लेते हैं आखिरी दिनों में। नो, क्योंकि हर मॉक का करना टायरिंग होता है। अब आपको टायरसम काम नहीं करना है, आपको वो काम करना है जिससे आप फ्रेश रहें, आपका दिमाग चल सके और एग्जाम में आप अटेम्प्ट कर सकें। तो जिनका 5 तारीख को एग्जाम है, 7 दिन है, उनको अधिक से अधिक 3 या 4 मॉक टेस्ट कर लें। जिनका अगले हफ्ते है वो 7 मॉक टेस्ट कर सकते हैं ड्यूरिंग दिस पीरियड। मीन्स एक मॉक टेस्ट करने के बाद 1 दिन का गैप दीजिए और 1 दिन में 1 से अधिक मॉक टेस्ट करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। हाँ, पर जिन्होंने अभी तक मॉक टेस्ट नहीं किया या मॉक टेस्ट नहीं लिया जो मैंने रिकमेंड किया है, वो अभी भी इसको ले लेंगे तो भी उनको फायदा होगा। मैंने आपको मॉक टेस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन कॉलम में दे दिया है, कमेंट कॉलम में दे दिया है, इसको सब्सक्राइब कर लो, आपको फायदा ही होना है। हजारों लोगों को फायदा हो चुका है, लगातार इंप्रूवमेंट आ रही है, क्योंकि मॉक के थ्रू ही आप अपनी गलतियां ढूंढ सकते हैं। अब फाइनल वीक्स में हमें क्या करना चाहिए? फाइनल वीक में हमें ज्यादा समय अपने वीक एरिया पे देना चाहिए। वीक एरिया आपने स्पॉट कर लिया। किसी का खाली इंग्लिश वीक एरिया, किसी का मैथ्स वीक एरिया, किसी का रीजनिंग वीक एरिया। अगर आपका एक वीक एरिया है तो आधा टाइम उसको दीजिए और आधे टाइम में बाकी 2 सब्जेक्ट करिए। मान लो आपके 2 वीक एरिया है तो 3/4 टाइम इसको दीजिए और 1/4 टाइम स्ट्रॉन्ग एरिया को दीजिए। मीन्स 8 घंटे आप लगाना चाहते हैं रोज के, तो आपने आधा टाइम वीक एरिया में 4 घंटे दे दिए और 4 घंटे में बाकी 2 सब्जेक्ट। 2 वीक एरिया है तो 6 घंटे आपने दे दिए वीक एरिया में, 3-3 घंटे ईच, और 2 घंटे दे दिए स्ट्रॉन्ग एरिया में। तो इस तरह से रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टाइम करके अगर आप पढ़ाई करते हैं, प्लान्ड वे में पढ़ाई करते हैं, तो आप सक्सेसफुल होते हैं। किसी भी एक सब्जेक्ट के ऊपर ओवर एम्फेसाइज मत करिए, एक ही तरह की चीजें भी ज्यादा मत करिए। हमें बैलेंस बना के चलना है, रिलैक्स होके चलना है। ओवर स्टडी भी नहीं करना है इन दिनों में, लेस स्टडी भी नहीं करना है, ओवर मॉक टेस्ट नहीं अटेम्प्ट करने। ये कई लोग गलती करते हैं, ये आखिरी दिनों में स्पीड बढ़ा देते हैं और एक के बाद एक मॉक टेस्ट करते चले जाते हैं। मॉक टेस्ट प्रैक्टिस करने से कोई फायदा नहीं होता, ये आप बिल्कुल अपने दिमाग में डाल लीजिए। मॉक टेस्ट का रोल है अपनी कमियों को ढूंढना। जिस दिन आप ये बात समझ जाएंगे उस दिन आप सक्सेस की सीढ़ी चढ़ चुके हैं। काफी लोगों में ये भ्रांतियां हैं कि मॉक टेस्ट करने से, प्रैक्टिस करने से स्पीड बनती है या तैयारी होती है। ये बिल्कुल गलत है। बहुत अधिक मॉक टेस्ट करने की आवश्यकता नहीं होती। 10-15 मॉक टेस्ट प्री के मोर देन अनफ होते हैं, यदि हम उनसे अपनी कमियां ढूंढ पाए हैं और उसको इम्प्रूव कर पाए हैं। अधिकता नहीं चाहिए इसके अंदर। मॉक टेस्ट एक टूल है, टेस्ट है। जैसे हम ब्लड सैंपल टेस्ट कराते हैं तो रोज टेस्ट करना जरूरी नहीं होता है। टेस्ट करके दवाई लेते हैं, खाना खाते हैं, फिर टेस्ट कराते हैं कुछ गैप के बाद। ऐसे ही मॉक टेस्ट होता है। मॉक टेस्ट का मकसद है समय समय पे अपनी परफॉर्मेंस को चेक करते रहना, अपनी कमियों को ढूंढते रहना और उन कमियों को पढ़ाई करना। जितना टाइम आप पढ़ाई पे देंगे, उन सब्जेक्ट्स को देंगे जहां आप कमजोर हैं, उतना आप आगे निकलेंगे। अगर बार बार सिर्फ मॉक ही करते रहेंगे तो आप अपनी परफॉर्मेंस को सिर्फ रीचेक कर रहे हैं, कुछ गेन नहीं कर रहे हैं। गेन कर पाएंगे पढ़ने से। मॉक से आपको वो डायरेक्शन मिल रही है, किस डायरेक्शन में मुझे पढ़ाई करनी है। इस चीज को समझना निहायत जरूरी है। गॉड ब्लेस यू ऑल।